Hello friends, I'm Dr. Hamid Khan, Team Director Path IAS Academy, and here we are going to analyze CGPSC Mains Test Series 2021, and we have different essays like withdrawal of USA from Afghanistan and its implications on India. So obviously this essay belongs to international scenario, international incidents and international issues. So this is very important issue. Recently, if you look into international issues, then obviously Ukraine, Russia is most important. But before that, Afghanistan was also one of the issue. And now see what this student has written. Geopolitics have always affected the state of the world since historical times. So he has given a single line background. Then although we can say it has become more pronounced in the post-World War II era with rise of superpowers like US and USSR, with the disintegration of USSR in 90s, situation became more of like hegemony of USA supported by its allies. The system of check and balance. So overall जो यहाँ पर sentence लिखा गया है, so that was not required this much, okay, because we are focusing on Afghanistan issue and this is all about like old era, right? So itna aap intro डालते हैं, it's unnecessary. I mean, you are wasting 1 2 3 4 5 6, because in Chhattisgarh especially when you talk about essay writing, then you will get 45 minutes and you are supposed to write in 750 words around, okay? So you should you should take around 650 words, 650 to 700 words, not more than that, because that will like obviously time is limited and you will get only 45 minutes. So you need to save some time also, and you will take 10 to 15 minutes for the planning of that essay or framing of that essay, and then for writing purpose you will get only 30 to 35 minutes. तो इतने में आपको कवर करके देखना है, और साथ में flow भी important है, sequencing of your ideas and your flow of your thoughts are very important, because कहीं से भी कुछ भी शुरू किया और लिख दिया, obviously ऐसे issues प्रॉब्लम करते हैं जब तक आप फ्रेमिंग नहीं करते हैं. विड्रॉल ऑफ यूएसए अब यहां से चालू हो रहा है, बिकॉज जो पूछा यहां से सेकंड पैरा में आ रहा है, विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम अफगानिस्तान फ्रॉम a narrow point of view may seem that a country can't interfere in alien land for a long time and must return. So आप देखोगे कि आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आप जब तक बैकग्राउंड बांधते रहेंगे या बैकग्राउंड पर बातचीत करते रहेंगे तो वो आप बहुत अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाएंगे टाइम को लेकर. और ऑब्वियसली वही यहाँ पर हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाइंस में आप सीधे सीधे मुद्दों पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है. Various analysts have saying since the withdrawal of USA in September 2021 that Afghanistan is graveyard of empires, ठीक है. तो बेसिकली ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बढ़िया है, यहाँ से आप उसको लिखना शुरू कर रहे हैं. मेनली आपको बात करनी है कि वो निकला क्यों, टू द पॉइंट बात करनी है कि वो निकला क्यों और निकलने से भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है. तो यहाँ आप डायरेक्ट फर्स्ट पैरा में ही बातचीत कर सकते थे, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड जाने की बजाय, कि अफगानिस्तान में वो आया क्यों वो बता देते आप, अफगानिस्तान से निकला कैसे वो बता देते आप, एंड देन इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन डिप्लोमेटिक सिनारियो, राइट. तो इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट बताना है. देन आप you need to talk about terrorism, you need to talk about peaceful coexistence principle which is promoted by India, वो भी बताना है. पाकिस्तान का चैलेंज आपको बताना है. सो आप देख पा रहे हैं कि आप जब बिना प्रैक्टिस के लिखते हैं तो थोड़ा सा बिखरते जाते हैं, और यहाँ पर अब अफगानिस्तान के बारे में आपने बोलना शुरू किया है इस वाले पोर्शन में कि उसकी सेंट्रल पोजीशन है एशिया में, राइट, और जोग्राफिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस जगह पर है. India has tried to control the Afghanistan for its invest like great power. अब देखिए भारत ने जो किया, भारत का प्रोस्पेक्ट क्या है वो आपको रखना पड़ेगा कि भारत अफगानिस्तान में क्या कर रहा है. ओके, सो इंडिया हैज इन्वेस्टेड सो मच इन स्कूल्स, okay, then roads, then obviously offices,
we are building offices, and in fact we are constructing toilets also in rural areas. So this much of India has invested. अब इन सब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान. ऑब्वियसली प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका है कि जहां प्रॉब्लम है वहां पर डेवलपमेंट पहुंचा दिया जाए, और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम से पाकिस्तान से हमें और ज्यादा चैलेंज मिलता है. ठीक है, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एरिया है, कई बार उसको फाटा भी कहा जाता है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया. तो उस एरिया में भी टेररिज्म, तालिबान, ये सब बहुत बड़ा चैलेंज है. कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहां से हवा ले जाता है और फिर उसका इम्पैक्ट आप देख पाते हैं नेगेटिवली भारत के ऊपर होता है. तो वहां से जब अमेरिका निकलना चाह रहा है तो ऑब्वियसली तालिबान को सेट करना या तालिबान के साथ कोऑपरेट करना इतना इजी नहीं है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका के हटते ही वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बदल सा गया है. फिर भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा सामान भारत से फिर भी जा रहा है. अब हम एक तो भारत डेमोक्रेसी की बात करता है, आर्टिकल 51 डीपीएसपी की बात करता है, जहां पर इंटरनेशनल पीस है ना. तो हमारी ये प्रिंसिपल अपनी जगह है, लेकिन अफगानिस्तान क्या चाहता है यह भी क्लियर नहीं है. तालिबान की सरकार आ गई तो भारत के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि भारत के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैम्पर होते हैं. हमारी वहां प्रेजेंस से कहीं ना कहीं चाइना को प्रॉब्लम तो थी, चाइना अब खुश हो गया कि चलो भारत इसी बहाने हट गया. हमारी उस प्रेजेंस से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, वो प्रेशर रिलीज हो गया उसका. तो आप देखेंगे इन सारी चीजों को आपको पॉइंट्स में तैयार करके बताना है, और इस पैरा में आपको सीधे सीधे आना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपीएससी का ऐसे नहीं लिख रहे हैं. यूपीएससी में होता तो हम बहुत सारी चीजों को मानते. यहाँ पर दोहा डायलॉग की भी बात हुई है ना, डैम वगैरह जो हम तैयार कर रहे हैं, इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है ना. तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो कि ये इंडिया के अपने अचीवमेंट्स हैं और हम कुछ बेहतर काम कर पा रहे हैं. चाबार पोर्ट की बात हुई, वो आपको करना पड़ेगा. अफगानिस्तान में ओपियम का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, आई मीन उसकी खेती होती है, अफीम की खेती, उसके बारे में भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी. ऑल्दो यूएसए हैज emerged as an ally of India and countering China, तो ठीक है, हमने यहाँ का चाइना रोल भी क्लियर कर दिया. बट आपको सीधे सीधे लिख कर आना होगा. कई बार आप घुमाते रह जाएंगे. ठीक है, हो सकता है आपको नॉलेज होगा, अच्छे से आप कर सकते हैं. यहाँ पर कमेंट मिला, कीप इट अप, यू ट्राइड वेल, इंक्लूडेड गुड पॉइंट्स, मार्क्स विल इंप्रूव ग्रेजुअली. तो 6 नंबर दिए, जानबूझकर कम किया गया है, क्योंकि पहले दूसरे राउंड में थोड़ा सा मार्क्स कंट्रोल करके दिया जाता है, ताकि आप भी अलर्ट रहें और आपको समझ में आए कि हाँ मुझे अब और मेहनत करनी है. ठीक है, और ये घबराने की जरूरत नहीं कि मार्क्स कम दिए जा रहे हैं तो हम जज कैसे करें. टीचर साहब से बातचीत करते हैं, आपको बताते हुए कि आपने अच्छा लिखा, ये ऐसे अच्छा लिखा गया, लेकिन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, जो कि फोन पर बच्चों से बातचीत करके और उनको क्लियर किया जाएगा कि इस ऐसे में क्या जरूरतें थी और आपको क्या बेहतर करना था. ठीक है दोस्तों, सो ये वाला ऐसे हो गया. देन ग्लोबली एनवायरमेंट इज एट एन अलार्मिंग स्टेज. तो अलार्मिंग स्टेज क्यों है वो आपको बताना है. ठीक है, environment is the sum total of all biotic and abiotic constituents then which are necessary for a living environment and for organism to survive. But man, instead of surviving in with environment and offered has tried to modify environment with its superiors intellect according to. कई बार होता है आपकी राइटिंग को पढ़ने में भी कई बार दिक्कत आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये कोशिश करना है कि थोड़ा सा साफ सुथरा लिखा जाए. कई बार वो क्लियर नहीं होता, 2 बार पढ़ें तब क्लियर होता है. ठीक है, सो एनीवेज अगेन फर्स्ट पैरा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, और सेकेंड थर्ड पैरा तक सीधे मुद्दे पर आ जाना है. लेकिन फर्स्ट पैरा ये जरूर बता दे कि अलार्मिंग स्टेज, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है पूरे ऐसे में कीवर्ड यही है, तो इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए कि क्यों अलार्मिंग स्टेज में है ये. एग्जाम्पल्स आपको डालने होंगे. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या आप कर रहे हैं, राइट. उसके बाद टू गिव अ प्रोस्पेक्टिव इन रोम डिक्लेरेशन ऑफ G20 कंट्रीज. सो अगेन मुद्दों से भटकना नहीं है, सिस्टमेटिक
आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है। जैसे जो ऐसे की डिमांड है, आप देख पा रहे हैं कि एनवायरमेंट के चैलेंजेस हैं, अलार्मिंग स्टेज पर क्यों है, अलार्मिंग स्टेज बताना है, देन उसके रीजंस आपको डिफाइन करने हैं कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे राइटिंग एक तरह से आर्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोलर अलायंस एंड इंटरनेशनल सोलर ग्रिड विथ एड फ्रॉम फ्रांस इन कोप 15, तो कुल मिलाकर सॉरी कोप 25 है बेसिकली। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, फिर इसरो का भी एग्जाम्पल है, लेकिन आप जब लिख रहे हैं तो आप देखोगे क्लियर कट विजन नहीं आता कि कुछ नया लिखना चाह रहे हैं, या तो अंडरलाइन कर दें आप, जैसे इसरो लिखा तो अंडरलाइन कर दें आप, नहीं तो पूरा फ्लैट और बड़ा प्लेन सा नजर आता है। सिस्टमेटिक है नो डाउट, हौच पौच नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है, वो स्पीड में पढ़ते हुए आगे निकलता है, तो उसकी मदद करनी होगी। आप इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो देखेगा। और लद्दाख राजस्थान आपने दिया है एग्जाम्पल, तो आपको 8 मार्क्स मिले हैं। डू नॉट फॉरगेट अंडरलाइन कीवर्ड्स, यहाँ भी बोला गया कमेंट में, यू एडिट की फैक्ट्स दैट इज अप्रिशिएबल। सो बेसिकली इसमें हालांकि फैक्ट्स अभी भी कम है, लेकिन आपको और फैक्ट्स की जरूरत है। तो कुछ साल भर में चलने वाले जो टॉपिक्स हैं आ रहे हैं, या तो योजना कुरुक्षेत्र में आप देख लीजिए, या फिर न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये टॉपिक साल भर इंपॉर्टेंट चला है, तो क्यों ना इसके लिए भी कुछ कुछ तैयार किया जाए। तो वो फिर आप अलग से कंटेंट निकालते जाते हैं, राइट। तो इस तरह की कॉपीज आप तैयार कीजिए, लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और पाथ आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, और अभी भी जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस ऐसे में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।